की कॉन्फ़िगरेशन देखो निकल 2 पॉजिटिव की। और जो 11 तो मतलब 11 कर देते हैं गलती, निकाल देते हैं। क्वेश्चन दिखाना क्या था 11th? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 कहाँ लिखी है तूने? थर्ड सेकंड पार्ट किए नहीं है। देखो मतलब आप मेरे को डन है। हेलो एल्केन्स को बनाने के मेथड आते हैं। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स को बनाने का एक मेथड बता। ओके, और हेलो एरीन्स को बनाने का मेथड फ्रॉम द पंजाबी मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस है। याद रहेगा ना? देखो ये, सो वी हैव डन द methods of preparation. Write down. क्या लिखना है अभी बताते हैं क्या लिखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। और किसी ने कराऊं? हाँ है, अभी बताते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रीन कलर के होते हैं। हेलोएरीन्स आर ग्रीन कलर्ड, लिख लिया उसने। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स, दे आर कलरलेस लिक्विड्स। ग्रीन तो मैंने तेरी टी शर्ट के ऊपर बोला था, उसको पता ही नहीं है। दे आर जनरली कलरलेस लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कलरलेस लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकंड, they are heavier than water. They are heavier than water and insoluble in water. Next, they are heavier than water and they are insoluble in water. And if they are insoluble in water, what will they be soluble in? Non-polar solvents, यानी कि organic solvents. Example दो है, केरोसिन लिख लेते हैं ये लाइन। They are soluble in organic solvents. अब organic solvents, I didn't get a satisfactory answer here. लिखो CCl4, one of the best. CCl4, CS2 लिखो। Next point, their melting and boiling points are nearly the same as the MPs and VPs are nearly the same as alkyl halides containing same number of carbon atoms. Their melting and boiling points are nearly the same as haloalkanes containing the same number of carbon atoms. So if I'm talking about the melting or the boiling point of chlorobenzene, which haloalkane I should be comparing with? Their melting and boiling points are nearly the same as haloalkanes of the comparable molecular masses. So अगर मैंने ये बेंजीन लिया है 6 कार्बन वाला, तो अगर मुझे एक हेलोएल्केन कंपेयर करना है वो ये है। अब अपने आप देखो, तुम्हारे को डिफरेंस भी पता लग रहा है बिटवीन अ हेलोएल्केन एंड अ हेलोएरीन, राइट और नॉट? व्हाट्स द नेम? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज IUPAC नेम।
So they will have nearly the same melting and boiling points. This is benzene. This is fluorobenzene. This is chlorobenzene. This is bromobenzene. And this is iodobenzene. Is it the increasing order of their boiling points or melting points? क्या इसका boiling point इन सबसे कम होगा? क्या रीजन है उसका? Yes. Van der Waals forces. नॉन पोलर है वैन डर वाल फोर्सेस और इन सब में कौन सी फोर्स? डाइपोल डाइपोल. एंड इनमें आपको पता है फ्लोरीन, देन यू हैव क्लोरीन, देन यू हैव ब्रोमीन एंड देन यू हैव, आई होप दैट मेक्स इट क्वाइट क्लियर. जब इसमें और इन सब में फाइट थी, इट वाज वैन डर वाल वर्सेस डाइपोल्स. जब इन चारों में फाइट थी, दे ऑल हैव डाइपोल. नाउ इट कम टू द साइज ऑफ द हैलोजन एटम. लार्जर द साइज ऑफ द हैलोजन एटम, more the van der Waals forces. Clear है ये? ठीक है. So if I keep the aromatic ring the same, fluoro has the lower boiling point, then chloro, then bromo, and then iodo. Next, the boiling points of isomeric dihaloarenes are nearly the same. Isomeric dihaloarenes are almost the same, where the boiling points of isomeric dihaloarenes are almost the same, where orthoisomer will have the highest boiling point and para-isomer will have the highest melting point. Para-isomer will have the highest, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. नहीं, अभी बता रहा हूं. ये बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है एक चीज पे डिपेंड करता है, विच इज कॉल्ड एज पोलैरिटी. पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन the dipole moment, right? अब ये देखो, this is क्या है ये? पहले आइडेंटिफाई करो ये तीनों. Are they isomeric dihaloarenes? The dipole in this direction, dipole in this direction at angle of 180 degree to each other, right? Cancel out. So this is non-polar. Non-polar है तो इसका boiling point सबसे कम होगा. इसका dipole moment सबसे high है because इसके और इसका जो angle है वो 60 degree है. Angle between the two vectors is 60 degree. Angle between the two vectors is 120 degree. तो जो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, दैट विल बी हायर देन दिस. ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द वैल्यूज हियर. फॉर द ऑर्थो आइसोमर द वैल्यू इज 2.4 डेवी, and it is 1.72. I hope I am understood. याद है लास्ट ईयर डाइपोल मोमेंट? ठीक है. Carbon halogen bond is polar. Carbon halogen bond is polar. The two dipoles at angle of 180 degree to each other mutually cancel out. Dipole moment 0. Now here the two vectors, the two dipoles are at angle of 60 degree to each other. Higher the angle. अब देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, देखो
180 पे तो 0 ही हो गया, यहाँ पे 60 था, इट हैज हायर डाइपोल मोमेंट, हायर डाइपोल मोमेंट मींस हायर, and higher the polarity, higher the boiling point. Boiling point only and only depends upon the polarity, right? So orthoisomer is most polar. This is ortho dihaloarene. I hope everybody identifies ortho, meta and para. ठीक है, तो अगर ये दोनों क्लोरीन, it becomes dichlorobenzene. It is कौन सा? Ortho dichlorobenzene, meta dichlorobenzene and para dichlorobenzene. Clear? Important है ये, please have a look at it. If you want to ask, you can. The boiling points, they only and only depend upon polarity. Polarity depends upon dipole moment, and dipole moments, they decrease with the angle between the vectors. जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, डाइपोल मोमेंट विल कीप ऑन. मैक्सिमम एंगल क्या आ सकता है? दो वेक्टर्स के बीच में व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल? 180 डिग्री. मैक्सिमम एंगल, मिनिमम डाइपोल. क्लियर? This is about the physical properties. किसकी? Haloarenes. Write down chemical properties. गिरेगा तो अच्छी बात है. तुम्हारे को पानी से एलर्जी है? हाइड्रोफोबिक. और सर आप ना एक जगह खड़ के पढ़ाया करो कैमरे के सामने. ऐसे नहीं कैमरे के. सर आप ये देखिए. डन है ये. So we start with the chemical properties of haloarenes. लिखना, haloarenes are chemically less reactive than haloalkanes because of the following reasons. बिल्कुल. Haloarenes are chemically less reactive than haloalkanes. Haloalkanes word stands for what? मुझे बताओ, haloalkane वर्ड सुनते केमिस्ट्री के स्टूडेंट के माइंड में अगर एक ही वर्ड आएगा या मैक्सिमम 2 वर्ड्स आएंगे, व्हाट विल बी दे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. That's what haloalkanes are. So if I'm saying that haloarenes are less reactive, which reaction I'm talking about? Nucleophilic substitution. So ये है क्लोरोबेंजीन. इसका मैंने एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है. गिव मी द रिएजेंट. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कई किया है, एक बोलो. सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन था? एक्वस KOH. इसको मैंने एक्वस KOH से रिएक्ट किया और यहां पे लिया मैंने एक हेलोएल्कीन. ये वाला तो बता सकते हो तुम, क्या है ये? CH3 प्लस. This is what I'm trying to emphasize. Now, what interpretation can be made from this? No. ये देखो, CH, H, H and Cl. For this substitution to take place, this bond has to break. And for the substitution to take place, this bond has to break. I'm calling it as A and it as B. Out of A and B, which bond seems to be stronger? A. कहीं ना कहीं जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है हेलोएरीन्स का, वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तभी तो ब्रेकअप नहीं कर रहा वो.
बिकॉज जब तक ये ब्रेकअप नहीं करेगा OH नहीं आ पाएगा। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हेलोएरीन्स इज मोर स्टेबल, मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द कार्बन। देखो जितना तुम वर्ड टू वर्ड क्लियर रहोगी, तो व्हाट आई एम टॉकिंग इज कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अ हेलोएरीन versus a carbon halogen bond of haloalkane, and it seems to be stronger. So that's what now I have to justify if this bond is stronger and this bond is weaker. करें स्टार्ट। सो लिखो पहला रीजन, एनी रीजन, नो रीजन। देखो फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट, सुना सुना सा वर्ड लगता है, भूला भूला सा भी लगता है। हाँ, anybody would like to tell me something about it? सर किसके बारे में? रेजोनेंस इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है रिक्वायर्ड? presence of load. तो भी हाइपर हो रहा है। ओनली कॉन्जुगेशन, सिंगल डबल ऑल्टरनेट बॉन्ड। हाँ दैट इज, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब सुनना ढंग से, these स्ट्रक्चर्स मैं बनाने वाला हूं, अब बहुत बार बनाने हैं तुमने, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर कुछ भी आएगा तुमने रेजोनेंस बना देनी है, ठीक है। तुमने कहीं पढ़ लिया फिनोल, तुमने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट कर देने हैं। इज इट ओके? अब सुनो, रेजोनेंस ऑपरेट करने के लिए दिस इज द रिक्वायरमेंट, either two pi bonds should be conjugating, conjugating means on alternate positions, or a lone pair should be conjugating with a pi bond, lone, single, ठीक है। अब देखो ये हो सकता है, बिकॉज ये वाला बॉन्ड तो इधर आ जाएगा, इस बॉन्ड का जाना तो मॉलिक्यूल ही खत्म हो गया। यस और नो? बिकॉज फॉर द मूवमेंट टू टेक प्लेस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। सो अब बताओ क्या क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस का चांस है? सो दिस लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू द बॉन्ड पेयर, और जो ये वाला बॉन्ड पेयर है दैट कन्वर्ट्स इनटू, जैसा तुम बोलोगे मैं बनाता जाऊंगा। डबल हो जाएगा। ठीक है टाइम। इस इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, जब रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं। अब आप अपने, आपके पास आंसर आ चुका है पहला, इज द कार्बन हेलोजन बॉन्ड बिकमिंग स्ट्रॉन्गर? डबल बॉन्ड बन गया, वो क्यों टूटेगा? अगले स्ट्रक्चर, अब ये लोन पेयर है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। नाउ दिस कन्वर्ट्स इनटू बॉन्ड एंड बॉन्ड गोज इनटू, ये। अब बताओ इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो तो बहुत कुछ है। दे आर हेलोएरीन्स की पूरी लाइफ ये स्ट्रक्चर्स है। एनीथिंग अबाउट देम इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय दिस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस नजर आ रही है, ठीक है। सो 1 2 3, लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। पता चलता है तुम्हें, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, एक ऐसा सिस्टम जो रेजोनेंस शो कर सकता है, उसमें जब रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, द इफेक्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट। नाउ हियर क्लोरीन जो है वो आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, आपके पाई बॉन्डेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? So here halogens will be said to have a plus R effect.
प्लस आर मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। किसी भी इफेक्ट के आगे प्लस लग गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। आर इज वो हो कैसे रहा है, प्लस आई प्लस आर प्लस सी, तो आर का मतलब रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है। So here halogen is giving electron density, what the way it is giving is with the help of resonance, right? अब सुनते जाना, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 और 3 पे देखना। Halogens have a plus R effect. Due to their plus R effect, the carbon halogen bond gets a partial double bond character. As it gets a partial double bond character, it becomes stronger. And as it becomes stronger, it will not break. So this is one of the reasons why haloarenes are less reactive. पहला क्लियर हुआ ये। अब मुझे बताओ, अगर ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, आपको पता है ना कि एरोमेटिक सिस्टम में जो भी रिएक्शन होना है वो इलेक्ट्रोफिलिक होना है, कराया था ना पिछली क्लास में। अब बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या क्लोरोबेंजीन को प्रेफर करेगा अटैक करना? इज इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? एंड am I looking at some negative centers on the ring? That's what it is looking for. याद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताओ कौन हटा था? हाइड्रोजन हटा था ना। बेंजीन के 6 हाइड्रोजन में से एक हटा था और उसकी जगह आगे इलेक्ट्रोफाइल लग गया था। अब बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल इन 3 डायग्राम्स को देख के इज इट फीलिंग हैप्पी और सैड? हैप्पी, बिकॉज द थिंग इट हैज बीन लुकिंग थ्रू आउट द लाइफ आज उसको नजर आ रही है। यस और नो? और ऊपर से बताओ, नजर भी कौन सी पोजीशन पे आ रही है? विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लोरीन दिस इज, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लोरीन दिस इज, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लोरीन। तो बताओ, क्या इलेक्ट्रोफाइल हैलोएरीन्स को लाइक करता है? यस। और अटैक कौन सी पोजीशन पे करेगा? तो आगे जाके मैं ये चीज कराने वाला हूं कि हैलोएरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें भी यही डायग्राम बना रहे हैं मैंने दोबारा से। तो आई विल से रेजोनेंस की वजह से विच पोजीशंस हैव बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा। तो बताओ, बेंजीन वर्सेस क्लोरोबेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल किसको लाइक करता है? ठीक है, ये है बेंजीन और ये है, कहां जाएगा? बिकॉज यहां पर हैलोजन ने बेंजीन रिंग को बना दिया इलेक्ट्रॉन रिच। एम आई अंडरस्टूड? वो चीजें निकालो, अभी माइंड बाद में करेंगे। अभी जस्ट इस चीज पे कंसंट्रेट करो। मेरे बारे में बोल रहे हैं ना कुछ? बोल के दिखाए। डन है? सो लिखो, स्ट्रक्चर बना लिया है? पहले बना लो स्ट्रक्चर्स। बोलो, लिखना इन हैलोएरीन्स ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ, इन हैलोएरीन्स, हाँ इसी के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर, इन हैलोएरीन्स ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ द हैलोजन एटम, the carbon halogen bond, the carbon halogen bond ब्रैकेट में स्ट्रक्चर्स 1, 2 and 3, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रैकेट में स्ट्रक्चर्स 1, 2 and 3 ब्रैकेट क्लोजेस। कार्बन हैलोजन बॉन्ड गेट्स अ पार्शियल double bond character, gets a partial double bond character. As a result, does not break up easily.
does not break up easily. ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब there are other reasons also for the less reactivity, but सबसे stand out reason will be this. Okay. पढ़ाऊं? Carbon halogen bond gets a partial double bond character and does not break up easily. Second point, the difference in the state of hybridization of carbon atom in the CX bond. Difference in the state of hybridization of the carbon atom in which bond? Where X is which bond I am talking about? आपको पता है जब मैं substitution की बात कर रहा हूं तो this bond is being talked. What is the hybridization of this carbon? ये नहीं काउंट करना. डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है. एक बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड्स मींस sp2 hybridized. ये कितने? क्या हो रहा है? sp2 में प्रॉब्लम है कुछ? मैंने बोला है हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट एक्सप्लेन द पाई बॉन्ड्स. It only explains the single bond 1, 2 and 3. This carbon is sp2 hybridized. This carbon is. उससे सोचो क्या फर्क पड़ सकता है? Come on. किसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है? Out of the 4 orbitals, only one is s. 25% बोल सकता हूं. किसी को डाउट है तो बात करेगा. एक s और कितने p? टोटल मिलके बने 1/4 into 100, that is 25% आया ना s character. So it has how much s character? 33%. तो तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है ना? क्या फर्क पड़ेगा इससे? The carbon of the haloarine of the CX bond has 33% s character and this has. अब देखो मैंने एक s ऑर्बिटल बनाया और एक मैंने p ऑर्बिटल बनाया. s को मैं और दोबारा से बनाता हूं just to emphasize my point. What difference you see? s को मैं दोबारा से बनाता हूं. I just want to show कि s orbital is small in size. अब बताओ इस कार्बन की लाइफ में छोटे साइज वाला ऑर्बिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका साइज छोटा होगा. यस और नो? इस कार्बन की लाइफ में छोटे साइज वाले ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू दिस कार्बन इज लेसर. सो कीप इन माइंड दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड विल बी स्लाइटली लॉन्गर. जस्ट फॉर द रेफरेंस is this much and this carbon halogen bond is shorter. Shorter bond is a stronger bond. कर दिया मैंने इसको strong proof. That's what I wanted. Take your time, go step by step. अपने आप देखो तो can you make up all the things that I told you? पहले आप दोनों की हाइब्रिडाइजेशन देखो डिफरेंस है. फिर हम s कैरेक्टर पे आ गए. इसके अंदर s ऑर्बिटल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. s orbital is small in size. A small sized orbital contributing more in life of this very carbon automatically makes it shorter. अब जब ये कार्बन छोटा होगा तो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड भी छोटा हो जाएगा. Comparatively this carbon is a bit larger. So this carbon halogen bond will be larger, weaker. Clear? लिखवाना पड़ेगा कि बनाओगे अपने आप? नहीं बनेगा. I'm very sure. Anybody wants to speak up? An essay on. तुम्हारे को तो एक दो ऐसे आते हैं बस. बेस्ट फ्रेंड,
I have many friends, but Ram is my best friend. हो गया? लिखना the carbon of CX bond, ऐसे लिखना ये carbon of the CX bond in haloarenes. The carbon of the CX bond in haloarenes is sp2 hybridized. ब्रैकेट में 33% s character. Carbon of the CX bond in haloarenes is sp2 hybridized, 33% s character, whereas the carbon of the CX bond, we are specifically saying it, the carbon of the CX bond in haloalkenes is sp3 hybridized, ब्रैकेट में 25% s character. ठीक है, लिख लिया यहां तक? What should be the next line be? अब लिखना as s orbital is smaller in size, as s orbital is smaller in size, so higher contribution of the s orbital, higher contribution of the s orbital makes the CX bond of haloarenes smaller than the haloalkanes. Makes the CX bond of haloarenes smaller than haloalkanes. And then the golden line, smaller bond is weaker bond. Smaller bond is a stronger bond. S for small, S for stronger. ये justification clear हुई? This is a language I gave you, you can make it yours. बस पंजाबी मत लिखना. हो गया ये? अब इस यहां से एक और रीजन निकालना है हमने. सेकंड रीजन देखते हैं. नहीं, इसी से निकलेगा. आपको पता है एस कैरेक्टर ज्यादा तो मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. ये मैंने लास्ट ईयर कराया हुआ है. नहीं माइंड में तो याद रख लो, जिस एटम के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी. तो आउट ऑफ द टू कार्बन्स, विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन ऑफ द हेलोएल्केन और कार्बन ऑफ द हेलोएरीन्स? कार्बन ऑफ हेलोएरीन्स. अब इसका मतलब है ये कार्बन इस कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो जो ये वाला शेयर्ड पेयर है ये क्लोरीन की तरफ उतना स्ट्रांगली जाने नहीं देगा. दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये बॉन्ड जल्दी पोलराइज करेगा, तो जल्दी टूटेगा. अब यहां पर हैलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, बट कार्बन भी तो छोटा मोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन चुका है. तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इतना इजीली जाने नहीं देगा. तो दिस बॉन्ड विल नॉट पोलराइज यानी कि चार्ज सेपरेशन नहीं होगी. और जब तक चार्ज सेपरेशन नहीं होगी देयर विल बी
नो रिएक्शन, बिकॉज फॉर अ बॉन्ड टू ब्रेक अप, कैसे टूटेगा बॉन्ड? एक एटम लेके जाएगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कार्बन नहीं ले जाने दे रहा है अब हेलोजन को, बिकॉज ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बन चुका है बिकॉज ऑफ higher the s character, higher the electronegativity. So carbon of the CX bond in haloarenes is comparatively more electronegative than the carbon of CX bond in haloalkanes. As a result, the CX bond of the haloarenes does not polarize and does not break. Hybridization से आया ये. Could you understand it? ठीक है, लिखना इसको. The sp2 hybridized carbon of the CX bond in haloarenes is more electronegative than the sp3 hybridized carbon of the haloalkanes. The sp2 hybridized carbon of the CX bond in haloalkanes is more electronegative than the sp3 hybridized carbon of haloalkanes bracket में CX bond. As a result, the CX bond of the haloarenes does not polarize. The CX bond of the haloarenes does not polarize, so does not break up. Clear? कितने रीजन करा दिए मैंने? 3. What सारे माइंड में नहीं रहते हैं. The best one is resonance effect, which directly proves this bond to be कैसे? पार्शियल डबल बॉन्ड. अब एक ये चीज देखना, कौन है ये? कौन है ये? बेंजीन है. तुक्का? कैसे लग गया तुमको पता बेंजीन? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो आप देखो बेंजीन में आप जो ये सेंटर में जो ये रिंग बनाते हो, तो अगर आप देखोगे ये बेंजीन का हेक्सागन है और आपको पता है पाई बॉन्ड इज अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. नजर आ रहा है? सो दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. एक ही पाई बॉन्ड है, दो नहीं है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही है, बस इट हैज 2 लोब्स. यहां से कौन आ रहा है? यही रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं. ये कौन है? हुआ ना ये हेलोएरीन. बनती है because benzene represents an electron rich cloud. Benzene has a pi electron. ये benzene है, ये pi electron cloud above the internuclear axis and pi electron cloud below the internuclear. यहां भी cloud, यहां से cloud, यहां से न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल हो जाएगा. तो जब वो रिपेल ही हो जाएगा तो कहां वो पहुंचेगा? यहां पर. कहां इसको सब्स्टिट्यूट करेगा? द थिंग गोज. So I have kept it as the last point. So as benzene ring is electron rich, nucleophile is electron rich, so there will be repulsions, and as a result nucleophiles. आपको पता है मैंने बताया हुआ है कि एरोमेटिक सिस्टम्स को कौन लाइक करता है? इलेक्ट्रोफाइल्स. एरोमेटिक आ गया तो एक ही रिएक्शन होंगे, कौन से? तो इफ इलेक्ट्रोफाइल लव अटैकिंग द बेंजीन, न्यूक्लियोफाइल विल नॉट. ये रीजन भी तो आना चाहिए. सो राइट ऑन द लास्ट वन. repulsions between the electron rich nucleophile and the pi electron cloud, electron rich nucleophile and the pi electron cloud of the benzene ring.
क्लियर हुआ ये? Repulsions between the electron-rich nucleophile and the pi electron cloud of the aromatic ring. I hope I am clear here. So जहां भी रेजोनेंस आ जाएगी वहां पर लिखना explain the following. हाँ, explain the following. First, why is Janmashtami celebrated? लिख लेना था ना? लिखो first, N-propyl chloride is more reactive than vinyl chloride. N-propyl chloride is more reactive than vinyl chloride. Second, allyl chloride is more reactive than allyl. Allyl chloride is more reactive than, बोलो, कुछ भी बोलो, is more reactive than N-propyl chloride. Start the first one. बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ. Draw the structure of N-propyl chloride. CH3, CH2, CH2. ये. Come to vinyl. Anybody? Anyone vinyl? Anyone vinyl? Nobody's vinyl here. आपको पता है डबल बॉन्डेड कार्बन इज विनाइलिक कार्बन और उसके साथ हैलोजन लगा है. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे साइंस वाला, यू शुड गेट. अगर ये क्वेश्चन मैं रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह के बाद करवा रहा हूं तो इट हैज टू बी रिलेटेड समवेयर. क्या यहाँ रेजोनेंस बनती है? यस. ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एरोमेटिक में ही रेजोनेंस में कॉन्जुगेटेड चाहिए. लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाट आई रिक्वायर. Of the out of this carbon halogen bond and this carbon halogen bond, which one is stronger? ये. So आपको पता है यहां पर no resonance, whereas here this lone pair will convert into a bond pair and the next bond pair will convert into I hope that's very clear. Very clear, like I have written it. है ना? बिल्कुल क्लियर लिखा है ना? किसी वर्ड में कोई डाउट नहीं है. आ गया ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर? बस. सो क्या बनेगी लैंग्वेज? इन विनाइल क्लोराइड, पहले सुन लो फिर बना लेना. इन विनाइल क्लोराइड, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, कार्बन हैलोजन बॉन्ड गेट्स a partial double bond character, becomes stronger, does not break up, and hence less reactive. No resonance, bond remains single and more reactive. Yes. कम हो जाती है. तो आपको ये रेजोनेंस कई चीजें, रेजोनेंस स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है. What यहां पर, because we are talking about nucleophilic substitution reaction, this bond is breaking up. बिकॉज हेलो एल्केन या हेलो एरीन के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है? हैलोजन ही हुआ ना. तो उस न्यूक्लियोफाइल को जाना है और नए को आना है. इसको जाना है तो ये बॉन्ड टूटना है ना. तो मेरा सारा का सारा ध्यान इस बॉन्ड पे है और रेजोनेंस की वजह से यहां यही बॉन्ड डबल हो गया. हो गया ना डबल? नहीं टूटेगा. डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड, whereas this bond remains single.
है ना सिंगल ये, बिकॉज यहां से रेजोनेंस नहीं चलेगी, सबको पता लगता है ये डबल बॉन्ड यहां आने को तैयार है, बट यहां से अगर ये बॉन्ड मूव किया तो यहां से तो मॉलिक्यूल ही ब्रेकअप हो जाएगा। ये क्लियर है? ये देखो रिएक्शन होना क्या है, ये है Cl, ये है आने वाला न्यूक्लियोफाइल। तुम अपने आप बताओ क्या होना है, इसको टूटना है ना, तो यहां पर रेजोनेंस की वजह से यही बॉन्ड तो डबल हो गया ना। मैं ये हटाया हाइड्रो, आई मे बी दिस हाइड्रोजन में बी कंफ्यूजिंग यू, देखो ये, अब ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, अब ये दिस इज द OH नेगेटिव आयन विच वांट्स टू कम, फॉर दिस टू कम दिस न्यूक्लियोफाइल हैज टू लीव। और आप अपने आप देखो रेजोनेंस की वजह से यही बॉन्ड तो डबल हो गया, हुआ ना डबल, ठीक है। एंड व्हेन दिस बॉन्ड गेट्स डबल तो नहीं ब्रेकअप करेगा ये, पॉइंट क्लियर। वो ज्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज ये सिंगल ही रहेगा, यार रेजोनेंस है ही नहीं है। डबल वर्सेस सिंगल न्यूक्लियोफाइल बोलता है यहां आगे ट्राई करता हूं बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट सकता है। सो दिस वही तो मैंने लिखवाया है, क्वेश्चन पढ़ो। एन प्रोपाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन, ये लिखवाया है ना, तो क्या रीजन बना, विनाइल क्लोराइड। सो राइट डाउन, इन विनाइल क्लोराइड, in vinyl chloride due to the plus R effect of the chlorine atom, due to the plus R effect of the chlorine atom, the carbon halogen bond, the carbon chlorine bond gets a partial double bond character. Carbon chlorine bond gets a partial double bond character. Clear? अब चलो carry your thought process to the second question. स्ट्रक्चर बन गए, फिर अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, लिख लेना इसके ऊपर, बहुत ज्यादा। राइट है, अब बिकॉज यहां पर बात होनी है तो मैंने ये कार्बन भी ओपन अप करके लिख दिया। आगे कौन है, हाँ, क्या दोनों के दोनों कार्बन सेम sp3 हाइब्रिडाइज लग रहे हैं, है ना, लग रहे हैं कि नहीं, रेजोनेंस का चांस है कोई, है नहीं है। अगर ये यहां मूव करता है ये तो टूट ही जाएगा यहां से। अब देखो क्या होगा, फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, ऐसे होता है रिएक्शन। अब बिकॉज स्ट्रक्चर में मुझे एज इट इज कुछ नहीं मिला तो मैं अगले स्टेप पे चला कि यार इस बॉन्ड को तोड़ के देखते हैं। उसी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, यही होता है इस मैकेनिज्म में, याद है मैकेनिज्म, CH3 CH2 CHH पॉजिटिव प्लस क्या बना, CC, कैफे कॉफी डे, हाँ, कार्बोकेटाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, राइट है, यही होगा कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बने की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, बताओ आउट ऑफ द टू विच वन इज मोर स्टेबल, सोच के क्यों, बिकॉज ये पॉजिटिव है, अगर ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करे सो क्या बन गया, अब CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH, हुआ ना। एक बार ढंग से देख लो इस क्वेश्चन को,
ये यहां पे समझ आ रहा है कि मैं ऊपर बना के दिखाऊं इसको? ये तुम्हारे को रेजोनेंस पता लगी? एक रूल क्या है, मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज मोर इज द, यहां पर जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है इसी कार्बन पे रह गया, सो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 कार्बन। यहां पर देखो रेजोनेंस की वजह से पहले ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, इस कार्बन पे है ना? ये मैं बता रहा हूं दोबारा से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, सबको नजर आ रहा है ये? यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा ना इसकी तरफ, और जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ जाएगा तो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, इट बिकम CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड। अब बताओ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग डिवाइडेड बाय हाउ मेनी कार्बन? 2। मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बिकम्स हाफ। Dispersal of the charge always leads to stability. So which carbocation is more stable? ये ज्यादा स्टेबल है, तो बताओ ये वाला कार्बन हेलोजन बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि ये टूटेगा? ये जल्दी टूटेगा, बिकॉज इसको पता है कि मेरे बनने वाला कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो ये जल्दी टूटेगा, जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। कुड यू अंडरस्टैंड? अब मेरी बात सुनो, अगर कभी भी इस टाइप का रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स हैं। पहला है एज इट इज मॉलिक्यूल देखो क्या उसमें रेजोनेंस चल रही है, विनाइल वर्सेस एन प्रोपाइल चल रही थी ना, वहीं से मिल गया आंसर। बट एज इट इज मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस नहीं चल रही है तो आप उस कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेकअप करो। कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकअप करने के बाद आपका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, आप उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो। हियर दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, मोर स्टेबल है तो बनेगा, बिकॉज ये इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट नहीं है ये, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड बोलते हैं यार ब्रेकअप हो जाते हैं बिकॉज आई एम मोर स्टेबल हियर। ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड बोलते हैं मेरे को ब्रेकअप करने का इतना फायदा नहीं है, मेरा कार्बोकेटाइन प्राइमरी है विच इज वेरी लेस रिएक्टिव, सॉरी वेरी लेस स्टेबल, तो ये वाला कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा, जितनी जल्दी ये टूटा न्यूक्लियोफाइल लग गया। एम आई अंडरस्टूड? सो एनीबॉडी वुड लाइक टू गिव द स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन? क्या बोलेंगे? द एलाइल कार्बोकेटाइन लिखो, द एलाइल कार्बोकेटाइन, ये वाला, द एलाइल कार्बोकेटाइन is resonance stabilized, allyl carbocation is resonance stabilized as a result the carbon chlorine bond, as a result the carbon chlorine bond of allyl chloride breaks faster, carbon chlorine bond of allyl chloride breaks faster than the carbon chlorine bond of N-propyl chloride. Carbon chlorine bond of N-propyl chloride. I hope the explanation was clear to everyone. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चन सुना, out of chlorobenzene and cyclohexyl chloride, which one is more reactive? Chlorobenzene and cyclohexyl chloride. Very nice, thanks. Chlorobenzene is a haloarine, cyclohexyl chloride is a haloalkane. कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये है आपका क्लोरोबेंजीन और ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अभी तो करके आ रहे हैं यार। अब मैंने तुम्हारे को क्वेश्चन करा दिया हेलो एरीन वर्सेस हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन तो मैं कोई भी ले सकता हूं, इसकी जगह इथाइल क्लोराइड ले लूं, मिथाइल क्लोराइड ले लूं, साइक्लोहेक्साइल, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये क्या रीजन दोगे? रेजोनेंस इफेक्ट, इतना लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? सो तुमने क्या बोलना है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। देयर आर 4 और रीजन, 3 और रीजंस हैं, बट रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल वर्क। समझ आ गया ये?
सो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी. सो हमें पता लग चुका है कि हेलोएरीन्स आर यूजलेस. ठीक है, पर इनके कुछ रिएक्शंस हमने करने हैं. लिखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स. हमें पता है ये बहुत कम रिएक्टिव है, और फिर भी there are 2-3 nucleophilic substitution reactions which they give. Nucleophilic substitution reactions of haloarenes. First, substitution by hydroxy group. Substitution by which group? Hydroxy. जब हेलो एल्केन्स में हाइड्रोक्सी ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट किया था तो क्या बना था? एल्कोहल्स बने थे ना. यहां भी वो सब्स्टिट्यूशन होती है, बट यू जस्ट लुक एट द कंडीशंस. कौन है ये? हेलोरीन है. ओवरऑल देखना क्या हुआ, किसने किसको रिप्लेस किया? Cl उधर देखो, हुई ना सब्स्टिट्यूशन, बट इट वाज नॉट इजी. लुक हियर, आप देख लियो किसको. so it's a very high 300 atmosphere pressure is not a small pressure. 1 atmosphere हमारे पे एक्ट करता है. So at a very high temperature ये बना सोडियम फिनॉक्साइड, उसकी हमने हाइड्रोलिसिस की, बना फिनोल. The process is called as, करते रहो, डाउज प्रोसेस. फिनोल को कमर्शियली बनाने का मेथड है. फिनोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल. जो हमारे घरों में डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं वॉशरूम्स वगैरह में, जो हार्पिक वगैरह है, उनका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फिनोल है. एंटीसेप्टिक यूज होता है ये. तो इंडस्ट्रीज में फिनोल को बनाने का मेथड है ये. बिकॉज ये टेम्परेचर लैब में तो क्रिएट नहीं होते. लैब में मत कर देना ये, खासकर 40 मॉडल की लैब में. ठीक है सर, हमने तो बना दिया फिनोल. ठीक है, सो दिस इज डाउज प्रोसेस, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल. ये डाइल्यूट ONA सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, डन है. देखो यही है, सेम प्रोसेस को मैंने ऊपर लिखा है सिंगल स्टेप में. स्टेप 1 ये वाला और स्टेप 2 ये वाला इकट्ठा करके लिख दिया. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. क्या किया मैंने? ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगाया. नो 15% NaOH
Temperature, I will just cross check. क्या हुआ? बताओ, conditions have become softer or they are harder? प्रेशर तो गायब ही हो गया, यानी कि प्रेशर यूज 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, अब सेम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं, एक NO2 ग्रुप के आने की वजह से रिएक्शन हैज बिकम इजियर और डिफिकल्ट? इजियर। फिर मैंने क्या किया, एक और NO2 लगा दिया पैरा पोजीशन पे। नोटिस NaOH, टेम्परेचर ऑफ 368 केल्विन्स, dilute HCl. Have the conditions become more milder now? ठीक है। फिर मैंने एक बची हुई ऑर्थो पोजीशन पे एक और NO2 लगा दिया। ये सो क्या नोटिस कर रहे हैं हम, NO2 के लगने की वजह से रिएक्शन करना इजी हो रहा है, यस और नो? इसको देखो और इसको देखो यार, जस्ट सिंपली वाटर की प्रेजेंस में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। इमेजिन द टेम्परेचर्स एंड द प्रेशर्स हियर। सो विद द अटैचमेंट ऑफ द NO2, what at what positions? The reactivity for nucleophilic substitution reaction in haloarenes increases or decreases? रिएक्टिविटी बढ़ रही है कि घट रही है? ये बढ़ रही है यार। अगर मुझे सॉफ्टवेयर कंडीशन, देखो Cl को कौन रिप्लेस कर रहा है? Cl को कौन कर रहा है? हर रिएक्शन में Cl is getting replaced, so substitution by hydroxy is happening now. But with the attachment of the NO2 group, that substitution is occurring at milder conditions. Milder condition पे reaction हो रहा है, इसका मतलब है easily हो रहा है ना? So it means reactivity is where NO2 comes under a category of group called as electron withdrawing groups, EWGs, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। You have NO2, you have CN, अभी तक दो, ये याद रखो। तो मैं क्यों करूं वो, मेरा दिमाग थोड़ी खराब। हाँ, तीनों फंक्शन तुम बोल रहे यहां Cl लगा दो, यहां OH लगा दो, यहां COH लगा दो, मतलब NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसकी जगह और भी कोई भी लगाओ, पर लगाओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तुम CN लगा लो, एक NO2, एक CN, एक COH, कुछ भी लगा दो, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, राइट है? अब सुनो, तुम देखते जाना, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू the halogen atom, the reactivity of haloarenes in nucleophilic substitution reactions increases. लिखना लाइन, उसके बाद लिखना इसको, when electron withdrawing groups are present at when electron withdrawing groups are present at ortho and para positions, with respect to the halogen atom, the reactivity towards nucleophilic substitution reaction increases. Reactivity towards nucleophilic substitution reaction
increases. अब इसका रीजन भी ढूंढना है हमने, पर पहले नोट करो ये। क्या बोला? केमिस्ट्री वाली मैम का रिएक्शन खराब करा दिया। किसने? कैसे? ये मैंने फोन के मैंने ड्रॉप डाली थी, मैंने 2 दिन बाद। कि मैंने होल ड्रॉप कहाँ डाली? टाइट्रेशन में? अरे तुम टाइट्रेशन नहीं कर रहे हो? बैकवर्ड पीपल। टाइट्रेशन पे सॉल्ट, ऑर्गेनिक एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं? कौन सा स्कूल है? हाइड्रेशन भी अभी उसके बाद तुम्हारा होगी। पंचुल यहां से सीधा इस्कॉन टेम्पल जा रहा है, नहीं सुना इस्कॉन टेम्पल? वो फिजिक्स वाला, फिजिक्स हमारा सर, सर के बारे में ऐसे बातें करते हैं, मेरे बारे में ऐसे तू करते होंगे बाद में, ऐसा करता है वो, आप करते हैं ना केमिस्ट्री वाला। पता है मेरे को, हो गया ये? तुम्हें समझ आ रहा है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू? हम एक हेलोएरीन को पावरफुल बना रहे हैं, उसको रिएक्टिव बना रहे हैं, बिकॉज वो बहुत यूजलेस लग रहा है हमारे को। फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए कौन सी पोजीशंस पे, एंड हमें लगा कि दे कैन बी ऑफ सम यूज। अब इसका रीजन करना है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, कहां पे है तू? बोल क्लास में हूं। तुम्हारी डेट शीट्स वगैरह आ गई है? केमिस्ट्री एग्जाम ऑन, एक एक करके बोलना। 14 सितंबर, 12, 15, 9 गांधी जयंती के बाद। सिलेबस सर आपको जानते हो सिलेबस कम कमाओ। मेरे को क्या मिलेगा उससे? मेरा क्या फायदा है? सर को यहाँ पे ओके, कौन है ये? है ना क्लोरोबेंजीन। अब मैं सिर्फ एक ही NO2 ग्रुप शो कर रहा हूं, यहां भी है यहां भी है, राइट? कौन आया अटैक करने? बताओ कहां जाना चाहता है ये OH नेगेटिव? टेक योर टाइम, जस्ट गिव मी 5-7 मिनट्स, उतनी टाइम बचा है। हाँ ठीक है, क्या होगा आपको पता है, इस OH को इस कार्बन पे लगाना है ना, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये जाना है, तो इट इज समथिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द SN2 मैकेनिज्म। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है ये। जैसे ये OH नेगेटिव आयन आएगा, दिस विल शिफ्ट हियर, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? वहीं तो जाना है इसको, यस और नो? सो जैसे ही ये शिफ्टिंग हुई, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और इस पे आया, एंड दिस OH नेगेटिव अटैचेस हियर, ये आ गया नेगेटिव, राइट है? अब मैं नेगेटिव चार्ज कर रहा हूं यहां पे शो,
अब बताओ मैंने जो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया वो कौन सी पोजीशन पे लगाए हैं? ठीक है, अगर मैं पैरा से हटा देता हूं उसको, सपोज दैट NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, अपने आप करेक्ट कर लूंगा। अगर ये NO2 ग्रुप बताओ यहां पे है तो कोई फायदा हो रहा है? दिस कार्बन इज गेटिंग व्हाट चार्ज, एंड रूल इज डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लीड्स टू, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स होना है यानी कि कम होना है। तो बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को कम करने में हेल्प कर रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, अब ये देखो, अब इस नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ ये भी तो रेजोनेंस शो करेगा। अगले स्ट्रक्चर में ये यहां पे शिफ्ट हुआ एंड दिस रीचेज हियर। अब बताओ नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे है? नेगेटिव चार्ज रीचेज व्हाट पोजीशन नाउ? और आप देखो पैरा पे भी मैंने NO2 लगा के रखा हुआ है, तो मुझे पता है अगर नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा तो यहां भी NO2 अटैच है। अगले स्ट्रक्चर में दिस शिफ्ट्स हियर, दिस शिफ्ट्स हियर, एंड नेगेटिव चार्ज नाउ रीचेज हियर। अब तो on what positions negative charge is coming, and these are the positions where I'm attaching the electron withdrawing group. ठीक है, मुझे पता है जब ये मैकेनिज्म चलेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज आता है तो अगर इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो वो उस नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करने में, उसको कम करने में हेल्प करेगा। और जब वो नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ये वाला जो कार्बन आयन है दिस विल बिकम स्टेबल। ये कार्बन आयन ही हुआ ना, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस इज कार्बन आयन। नेगेटिव चार्ज को कौन कम करेगा? इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई वी आर अटैचिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेट। लगा पता? सो व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस there is creation of negative charges on ortho and para positions, and presence of electron withdrawing group on these positions will help in the dispersal of that negative charge, and this will lead to the stability of the carbon ion, and that will increase the reactivity. Am I understood here? Yes. करो ये नोट। मैकेनिज्म है ये ऊपर वाले रिएक्शन का। एक ही तो स्टेप है, ये SN2 है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। ये तो मैं उसकी स्टेबिलिटी दिखा रहा हूं आपको, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ द कार्बन आयन। ओनली वन स्टेप इज देयर। अब अगले स्टेप में आपको पता आपका ये Cl वाला बॉन्ड टूट जाएगा, दैट हैपेंस इन SN2। टेस्ट रखना है हेलोरीन्स का। अब पता क्या प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने स्कूल एग्जाम में बिजी हो गए, यहाँ ऑर्गेनिक ऐसे जाती रहेगी, आप तो आओगे क्लास लगाओगे, दैट्स इट। अगले संडे ले लो, नेक्स्ट संडे, बट प्लीज डोंट इग्नोर इट। पेपर आते रहते हैं यार, हु केयर्स। और तूने मान लिया? सर ने बोला 35,000 और तू मान लिया? वो इस्कॉन वाले सर, विकास सर। ऑब्जेक्टिव तो तुम ऐसे निकाल देते हो। मैंने अगले संडे को टेस्ट रखना है, सबको देना है। किसके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं? कौन है जिसका केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है विदाउट माय नॉलेज? तेरा हो चुका केमिस्ट्री? तेरा हो गया? क्या किया तूने उसमें? सर चीटिंग। डन है।
बोलो, ये बने पड़े हैं, तुम लिख लेना, जस्ट लेट मी बाइंड अप। लिखना इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1, 2 and 3. In the resonating structures 1, 2 and 3, there is creation of negative charge. Where? There is creation of negative charge on ortho and para positions with respect to halogen atom. There is creation of positive and negative charges with respect to the halogen atom, and presence of, there is creation of positive and negative charges on ortho and para positions with respect to the halogen atom. ये पहली line थी. Next line now, and the presence of electron withdrawing group. Presence of electron withdrawing group at these positions. Presence of electron withdrawing group at these positions help in dispersal of the negative charge. Help in dispersal of the negative charge, which increases the reactivity of haloarenes, which increases the reactivity of haloarenes in in nucleophilic substitution reactions. Clear hai ye? So we are almost there with the chapter. Next class we will wind it up. Have a nice day. A nice day, है ना? Thank you.